سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے قومی اسمبلی کی، جہاں حکومتی رکن نور عالم خان نے ملک کو ٹھیک کرنے کا فارمولہ دے دیا۔ کہتے ہیں قومی اسمبلی میں حکومتی بینچز کی پہلی 3 صفوں میں بیٹھے ارکان کا نام ECL میں ڈال دیں، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے ارکان کو لگژری گاڑیوں اور ہوائی جہازوں سے نیچے اترنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ پاکستان سے باہر پاکستان میں 4 ہی ضلع ہیں، ایک سوابی ہے اور ایک وہاں پہ میاں والی ہے۔ تو ہم لوگ کیا کریں گے سر؟ وہاں پہ نہ بجلی دیتے ہیں، نہ فنڈ دیتے ہیں، نہ گیس دیتے ہیں۔ تو سر میں یہاں پہ کس کے ساتھ؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ ووٹ تو دے دو۔ سر لوڈ شیڈنگ میری 20 گھنٹے 22 گھنٹے بلکہ 3 دن میں بعض جگہوں پہ آپ وہ کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں میں کس کے ساتھ وہ کروں۔ سر گیس کا یہ حال ہے، مہنگائی تو چھوڑ دینا، وہ تو آپ ہو رہا ہے، وہ تو چلیں آپ ان پہ ڈالیں، یہ آپ پہ ڈالیں، یہی آپ کریں۔ لیکن سر ہمارے لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ کیا آپ یہ بڑی کانوائیں بھی بند کر لیں گے؟ آپ غریب بندے پہ تو آپ لوڈ ڈال رہے ہیں۔ ذرا خدارا اپنے BMWs اور وہ لینڈ کروزر سے بھی نیچے تو اترے نا۔ وہاں پہ تو آپ لینڈ کروزر اور BMWs اور ہوائی جہازوں میں پھر رہے ہیں، تو اس سے ذرا نیچے اتریں۔ آپ غریب پہ خالی بوجھ نہ ڈالیں، ان کے لیے آٹا اور گھی اور دودھ اور وہ نہ کریں، اور ان پہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں۔ ذرا یہ ان بڑے لوگوں اور جتنے بھی ہیں ان پہ وہ کریں۔ اور یہ 3 روز جتنے بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں سر، ان سب کے ECL میں نام ڈال لیں، آپ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر۔ شکریہ۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار آسماں شیرازی صاحبہ۔ بہت شکریہ آسماں صاحبہ آپ کے وقت کا۔ نور عالم خان صاحب ویسے تو حکومت کا حصہ ہیں، ایوان میں بھی حکومتی بینچز پر بیٹھتے ہیں، لیکن حکومت کو ہی وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ وہ حکومتی ارکان کو تنقید کر رہے تھے اور انہوں نے سب کا نام ECL میں ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، حکومتی بینچز سے کسی MNA کا اس طرح بات کرنا اور پھر ان تمام لوگوں کا جو ان کے نزدیک کلپریٹس ہیں، جن کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے، ان کی بیڈ گورننس اور ان کی جو پور پرفارمنس ہے، اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ان کا اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ان کا نام ECL پہ ڈالنے کا جو مطالبہ ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور ہم نے تو آج تک کم از کم پچھلی 4 پارلیمنٹس تو ہم کور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کسی بھی حکومتی نمائندے کو اپنی حکومت کے خلاف اس طرح کے سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ ہم نے نہیں دیکھا اس سے پہلے۔ تو یہ تو بہت ہی اہم بات ہے جو کہ آج نور عالم خان صاحب نے کی ہے۔ بائی دا وے، نور عالم خان صاحب وہ MNA ہیں جو کہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تو اس وقت اپنی جماعت پہ تنقید کرتے تھے، اور ان پہ اس طرح نہیں کرتے تھے، لیکن ضرور ان کی جو ہائی لائٹس کرتے تھے آبجیکٹیولی، ان کی جو کرٹیسزم تھی وہ ہوتی تھی۔ اور ابھی بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پیچھے بھی وہ بولتے رہے اور بڑے تواتر کے ساتھ بولتے رہے۔ وہ کوئی موسمی پرندوں کی طرح نہیں ہے کہ جو اڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی بات کہنا وہ جانتے ہیں۔ تو اب جب کہ اس میں شدت آ گئی ہے اور اس میں اور زیادہ اور لوگ بھی شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ حکومتی بینچز جو ہیں ان کے اوپر انریسٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ منی بجٹ جس کے اوپر آج حکومت تالیاں بجا رہی ہے، کل جب یہ بجٹ عوام کے پاس جائے گا اور جس طرح سے مہنگائی میں ہوشربا اضافہ ہوگا، تو اس کا جو پہلا شکار ہوں گے وہ تو علاقوں کے جو اپنے اپنے حلقوں کے نمائندہ ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ اس کا شکار ہوں گے، ان کو فیس کرنا پڑے گا، ان کو اپنے عوام کو جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ انہوں نے اسی صورتحال کو بھی سامنے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آئندہ دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی بولیں اور اپنے آپ کو اپنی جماعت سے لا تعلق کریں۔ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ بات کرنا شروع ہو گئی ہے، اور آگے جا کے شاید وہ میڈیا کے اوپر بھی آ کے کھل کے بات کرنا شروع کریں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آسماں شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے بعد PTI کے لیے نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ کپتان کے کھلاڑیوں نے مولانا کی ٹیم میں جانے کی تیاری کر لی ہے۔ 6 صوبائی، 2 ارکان قومی اسمبلی اور 1 سینیٹر کے JUI سے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ 10 سے زائد سابق صوبائی، قومی اور سینٹ کے ارکان بھی پر تولنے لگے۔ JUI میں شمولیت کے خواہش مند تمام افراد کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ JUI کی صوبائی قیادت نے مولانا سے مشاورت کا وقت مانگ لیا۔ مولانا فضل الرحمان کی منظوری کے بعد شمولیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔
حکومتی ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ نے گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان اور پرویز خٹک کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک نے اپنے صوبے میں گیس کے ایشو کے حوالے سے بات کی تھی، ان کی بات کو غلط رنگ دیا گیا، جبکہ اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ حکومت نے رولز اور ریگولیشنز کو بلڈوز کر کے بجٹ پاس کرا لیا۔ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ 2 قدم آگے ایک قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے، ذہنی طور پہ بھی کمزور ہے۔ اگر تھوڑا سا طاقتور ہو جائے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا اور پی ایم سے کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ گیس اسکیم پہ حماد اظہر سے سوال تھا کہ آپ ایشور کریں مجھے کہ یہ اسکیمز یا یہ جو گیس کا بحران ہے یہ ختم ہوگا، اس پہ بات ہوئی۔ دیکھیے میرا خیال ہے ایک شخص جس کا نام قاسم سوری ہے، جو آنریبل سپریم کورٹ کے ایک اسٹے آرڈر کے پیچھے 1.5 سال سے بیٹھا ہے، اس کو نہ رولز کا پتہ ہے، نہ وہ کوئی تعلیم یافتہ شخص ہے۔ اس نے کل تمام رولز پروسیجرز کو جو ہے بلڈوز کر کے ایک فیشزم کی نئی تاریخ رقم کی ہے، اور اس کرسی صدارت پہ بیٹھ کے بطور ایکٹنگ اسپیکر کے جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے اکاؤنٹ کو ریفیوز کیا اور جس طریقے سے یہ سارے معاملات کرائے، کل ان کے ممبر بھاگ گئے ہوئے تھے، ہمارے نمبر زیادہ تھے، اس طرح اسمبلی چلانی تو دربار سڑک پہ چلا۔ سر یہ بتائیے کہ پرویز خٹک کا کیا معاملہ ہے، وہ بتائیے گا، آپ کو کچھ اطلاعات ہو؟ بارش کا پہلا قطرہ ہے، ابھی بہت سارے ایسے قطرے اور آئے۔ گیس کے معاملے پہ پرویز خٹک نے اپنے ایشوز ظاہر کیے، جو ہماری پیٹرولیم منسٹری ہے تو اس سے ریلیٹڈ ان کے ایشوز تھے، ان کے صوبے میں، ان کے حلقے میں، تو اور یہ ہر میٹنگ میں اس طریقے کی شکوے شکایات ہوتی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سن لے، تمام مالیاتی بل واپس ہوں گے۔ بل منظور کر کے ملکی معیشت کی چابی آئی ایم ایف کو دے دی گئی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ خطرناک بل بھی کل رات کے اندھیرے میں پاس کروایا گیا۔ آج پاکستان کی مہنگائی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے۔ یہ جو بل کل پاس ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید پہلے نمبر پر آ جائے۔ جب ملک کی معیشت، ملک کے اندر مہنگائی اسٹیٹ بینک کے حوالے ہوگی، جس کی ذمہ داری نہ ہوگی، اختیارات اس کے پاس ہوں گے۔ آج عوام کی پرواہ نہیں ہے، عوام کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس بل سے اور بڑھے گی۔ کہ پاکستان کی عوام کی مشکلات کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، آئی ایم ایف کی پرواہ سب کو ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کا ہر وزیر نجی محفلوں میں یہی کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں آئی ایم ایف کے ہاتھوں۔ چاروں شریف سیاست سے مائنس ہیں۔ نواز شریف سے زیادہ کرپٹ شہباز شریف ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ یہ چاہتے ہیں جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ ان کے سر پر آ جائے، وہ ہاتھ ان کی گردن پر تو آ سکتا ہے، سر پر نہیں۔ شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے۔ چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے، اور یہ ہے سیاست۔ وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا، ان کے سر پہ نہیں آئے گا۔ اور یہ اپوزیشن تو اندھی ویل مچھلی ہیں، یہ اندھے خواب دیکھ رہی ہیں، دو لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ بابا ایک ہی کرو تاکہ پورا ٹوکرا آپ پہ رکھ دیا جائے۔ دو لانگ مارچ کریں گے ہم، آپ کو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ بالکل، جب تک آپ راستوں کو رکاوٹ نہیں کہیں گے، بے شک لانگ مارچ کرو یا لانگ مارچ کرو۔ سینٹ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آ گئی۔ یوسف رضا گیلانی بولے، ہر ماہ قیمتوں میں اضافہ کر کے احتجاج پر اکسایا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں قانون سازی کو بلڈوز کیا گیا۔ جواب میں شہزاد وسیم نے کہا کہ آئی ایم ایف میں جانے کی بات وہ کر رہے ہیں جو خود 13 بار وہاں گئے۔ جو منی بجٹ ہے اور جو پریویس بجٹ ہے اور اس کے اندر جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ آئی ایم ایف کی بات وہ کر رہے ہیں جو خود 13 دفعہ اس سے پہلے آئی ایم ایف جا چکے ہیں، ہم تو پہلی دفعہ آئی ایم ایف گئے ہیں۔ کل نیشنل اسمبلی میں جو بلڈوز کیا گیا ہے اور اس منی بجٹ کے لیے، تو میں اس پہ بھی پروٹیسٹ کر رہا ہوں۔ جب آپ اگر میجورٹی میں ہو تو وہ میجورٹی ہے، وہ میجورٹی کا فیصلہ ہے، اور اگر کوئی کسی دوسرے کی میجورٹی ہو تو پھر آپ کہتے ہیں وہ بلڈوز ہو رہا ہے۔ ہم نے سوال یہ نہیں کیا کہ میجورٹی کی بنیاد پر آپ جو چاہیں کر لیں، تو میجورٹی کی بنیاد پر بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے 22 کروڑ عوام کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ 22 کروڑ عوام کی بات وہ کر رہے ہیں جو آج تک کئی دہائیوں سے اس ملک پر حکمران تھے اور عوام کو انہوں نے اس حال پہ پہنچا دیا۔ اگر 22 کروڑ عوام سفر کر رہی ہے اور آپ صرف یہی کہہ دیں کہ ہماری میجورٹی اور ہم پاس کر دیں گے، دیٹ از بلڈوز۔ اور تمام اخبارات میں اگر کوئی ہیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہے کہ بلڈوز کیا ہے۔
पंजाब हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे और वापसी के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। सीनियर प्रोफेसर पर मुश्तमिल 9 रुकनी स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। बोर्ड लंदन से भेजी गई 29 सफ़ात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेगा। मियां नवाज शरीफ के रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें वतन वापस लाया जा सकता है या नहीं, बोर्ड 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। मज़ीद जान लेते हैं, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामी, बताएगा क्या इक़दाम उठाए गए हैं इस सिलसिले में? बिल्कुल, क्योंकि वफाकी हुकूमत की सिफारिशात थी तो उन्हीं सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत ने बाकायदा एक स्पेशल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से बोर्ड की तश्कील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और प्रोफेसर जो डॉक्टर हैं आरिफ नदीम, इनकी सरबराही में ये 9 मेंबरान पर मुश्तमिल ये बोर्ड जो है वो अब तफ्तीश करेगा, अपनी हतमी सिफारिशात जो है वो पंजाब हुकूमत को पेश करेगा। अब इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो TOR तय किए गए हैं उसमें मेडिकल बोर्ड ये देखेगा कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की वफाकी हुकूमत को पेश की गई हैं उसके मुताबिक क्या उनका पाकिस्तान आना काबिल है। अब इसमें क्योंकि 29 सफ़ात पर ये रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब ने भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के हवाले कर दी हैं। अब 29 जो सफ़ात पर मबनी ये रिपोर्ट है इसका जायज़ा लिया जाएगा कि जो इसमें एक रिपोर्ट में शामिल किया गया है उसके मुताबिक क्या मियां नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं या नहीं। अब ये मेडिकल बोर्ड उसमें जितने भी उनकी रिपोर्ट्स होंगी उनको देखेगा, उनका बाकायदा जायजा लेगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या मियां नवाज शरीफ की इन रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या तबीयत बेहतर है या नहीं। अगर तबीयत बेहतर है तो फिर उसके मुताबिक वो अपनी सिफारिशात पेश करेंगे जिस पर पंजाब हुकूमत यही सिफारिशात वफाकी हुकूमत के हवाले कर देगी। अब अगर उनकी तबीयत इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ठीक ना हुई तो जो उनमें उनकी रिकमेंडेशंस होगी वो रिकमेंडेशंस पंजाब हुकूमत के हवाले की जाएंगी। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि रिपोर्ट्स अगर बेहतर हुई तो फिर वफाकी हुकूमत अपनी कोशिश करेगी कि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए अपने अहम इक़दाम जो है वो करें। बहुत शुक्रिया अली रामी अपडेट करने के लिए। हस्पताल या मक्तल, लाहौर सर्विसेज अस्पताल में खुद चलकर आने वाला मरीज मुर्दा करार दे दिया गया। इमरजेंसी वार्ड में 30 साला हामिद 1 घंटे तक डॉक्टर्स का इंतजार करता रहा, बर वक्त इलाज न होने पर जिंदगी हार गया। अस्पताल इंतजामिया ने अपनी गफलत छुपाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा कि हामिद को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन 24 न्यूज़ की CCTV फुटेज सामने लाने पर भांडा फूट गया। मज़ीद जान लेते हैं, एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा ये क्या माजरा है? सर्विसेज अस्पताल में आज सुबह एक पेशेंट की मुबैना गफलत से हलाकत के ऊपर जो शवाहिद हैं वो सामने आए हैं और ये बहुत ही संगीन नोयत के शवाहिद हैं जो मंजर आम पर आए हैं। अस्पताल इंतज़ामिया डॉक्टर्स की जानिब से ये ज़ाहिर किया गया था कि समनाबाद का रहायशी 30 साल हामिद जो है उसको मुर्दा हालत में इमरजेंसी में लाया गया था और वो अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ चुका था और इसमें डॉक्टर्स की या अमले की कोई गफलत जो है वो शामिल नहीं है और इसके वो मुर्तकब नहीं है। ताहम अब CCTV फुटेज मंजर आम आई गई और इसके साथ जो है वो ये साबित हो गया है कि जो हामिद है उसको मुर्दा हालत में नहीं बल्कि वो खुद चल कर जो है वो तकलीफ़ के साथ अस्पताल पहुंचा। पर्ची काउंटर पर 5:52 पर जो है वो कंप्यूटराइज पर्ची बनवाई गई और उसके बाद उसको मेडिकल इमरजेंसी में उसके अटेंडेंट से लेके गए, लेकिन उसको बिल्कुल किसी ने अटेंड नहीं किया। 1 घंटे तक वो जो है मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला रहा। इस दौरान अनअटेंडेंट होने की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई और जब लवाकिन ने एहतजाज किया तो इस तमाम तर गफलत को छुपाने के लिए डॉक्टर्स और अमले की जानिब से 6:43 पर दोबारा हामिद की जो है वो कंप्यूटराइज पर्ची बनाई गई और उस पर्ची की बुनियाद पर उसकी एंट्री 6:43 पर डालकर उसको जो है वो मुर्दा हालत में अस्पताल लाए जाने का जो है वो रिसीव डेथ का सर्टिफिकेट जारी किया गया। ये तमाम तर जो सूरत हाल है इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, इसकी फुटेजेस, ये सब जो है वो अब मौसूल हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं और इसकी बुनियाद पर जो है वो न सिर्फ संगीन गफलत जो है वो साबित होती है डॉक्टर्स की, बल्कि इसके साथ साथ जो मुजरमाना एक्ट किया गया, तमाम रिकॉर्ड टेम्पर किया गया, जिस तरह रद्दोबदल किया गया, उसके भी शवाहिद अब सामने आ गए हैं। जिस वक्त हामिद को 5:52 पर सुबह अस्पताल लाया गया तो उस वक्त मेडिकल यूनिट 3 जो है वो इमरजेंसी में ऑन कॉल था और मेडिकल यूनिट 3 की इमरजेंसी 6 बजे ख़त्म हुई। उससे पहले ये एक सीरियस पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में आ चुका था खुद चलकर, लेकिन उसको अटेंड नहीं किया गया और 6 बजे जब ड्यूटी चेंज हुई तो दूसरा यूनिट मेडिकल यूनिट 2 था जिसने आके जो है वो अपना चाय संभाला इमरजेंसी में, लेकिन उनकी जानिब से भी इस पेशेंट को जो है वो नेगलेक्ट किया गया। और जब पहली पर्ची बनाई गई जिस वक्त हामिद खुद चल कर आया था उस वक्त 5:52 पर यूनिट 3 की ड्यूटी थी, जबकि जब उसकी डेथ हो गई और उसकी गफलत जो है वो उसको छुपाना मकसूद था तो फिर 6:43 पर मेडिकल यूनिट 2 ने
एक नई एंट्री करवाई और उस एंट्री की बुनियाद पर उसको रिसीव डेड करार देने की कोशिश की गई है। ज़राए के मुताबिक जो अटेंडेंट्स थे साथ, उनकी जानिब से जब इस पेशेंट के साथ जो संगीन नौइयत की गफलत बरती गई उस पर जब एहतजाज किया गया तो उनको कमरों में बंद करके अमले की जानिब से, एहलकारों की जानिब से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले भी किया गया। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामी पॉलिसी की तश्कील ज़बरदस्त इक़दाम है। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि ये दस्तावेज़ कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार साबित होगी। मक्का टेरेस केस में गलत बयानी पर अदालत ने बिल्डर को झाड़ पिला दी। सिंध हाई कोर्ट ने SPCA अफसरान पर भी बरहमी का इजहार कर दिया। इमारत का एक हिस्सा गिराकर 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स ये कि आपके अफसरान ने आंखें बंद कर रखी थी। क्या आपने अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई? करोड़ों रुपए के फ्लैट्स खरीदने वाले आज सड़कों पर आ गए। 6 माह तक बिल्डर फ्लैट्स की तज़ीन व आराइश करेगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जायजा लेकर दोबारा बिल्डिंग अप्रूवल प्लान मंजूर करे। आगे बढ़ते हैं और आपको आगाह करेंगे कि सानिह मरी की तहकीकात में अहम इंकशाफात हुए हैं। बर्फ हटाने वाली 20 गाड़ियां एक ही मकाम पर खड़ी रहीं। ड्राइवर्स और अमला भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। कमेटी ने मरी में ऑपरेशनल अमले के बयानात कलमबंद कर लिए। महकमे जंगलात के एहलकार कमेटी को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे हैं। FBR का टैक्स गुजारों की अपीलें ना सुनने का इंकशाफ हुआ है। टैक्स गुजारों की 82 अपीलें रद्दी की टोकरी में डाल दी गईं। विफाकी टैक्स मोहतसिब ने गफलत और बद इंतजामी पर चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर की सरजनिश कर दी। मज़ीद जान लेते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, क्या वजह है कि अपीलें रद्दी की टोकरी की नज़र हो रही हैं? जी बिल्कुल, FBR में ये एक इंकशाफ हुआ है कि FBR के जो अफसरान हैं वो टैक्स गुजारों की जानिब से जो अपीलें दायर की जाती हैं उनको ना तो सुनते हैं और ना ही उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई करते हैं। वफाकी टैक्स मुहतसिब का ये कहना है कि 9 जुलाई 2016 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक का रिकॉर्ड चेक किया गया है और इसकी इंक्वायरी की गई है, जिसमें ये सामने आया है कि FBR ने के जो अफसरान हैं उन्होंने 82 अपीलें टैक्स गुजारों की रद्दी की टोकरी में डाल दी और बगैर किसी वजह बताए इन अपीलों को सुनने से इनकार कर दिया है। FTO का यह कहना है कि चीफ कमिश्नर लाहौर कारपोरेट ऑफिस को ये हिदायत जारी की गई थी कि वो टैक्स गुजारों की जो अपीलें हैं वो कानून के मुताबिक 2 माह के अंदर सुनने और इसका फैसला करें, लेकिन वो मुसलसल इनका जो ऑफिस है वो गफलत और नाअहली का मुस्तकिल हो रहा है। इसलिए FBR के आला हुकाम से ये मुतालबा किया गया है कि इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया वकास अजीम अपडेट करने के लिए। 133 किलोमीटर तवील 500 kV नीलम जेहलम ट्रांसमिशन लाइन का दूसरा फेज़ भी मुकम्मल कर लिया गया। NTDC के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन से 969 मेगावाट नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 720 मेगावाट करवट हाइड्रो पावर से बिजली तरसील की जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा क्या कहना है इस सिलसिले में NTDC का? जी बिल्कुल, ये 133 किलोमीटर जो तवील जो 500 kV नीलम जेहलम ट्रांसमिशन लाइन के जो दूसरा फेज है वो मुकम्मल कर लिया गया है। ट्रांसमिशन लाइन से 969 मेगावाट नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 720 मेगावाट जो क्रोड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बन रहा है उससे भी बिजली तरसील की जाएगी। 969 मेगावाट के नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली बराह रास्त 500 kV जो नोकर न्यू गक्कड़ जो गेट स्टेशन को पहुंचाई जाएगी, जो लोड सेंटर के करीब है। नीलम जेहलम से नोकर ट्रांसमिशन लाइन के साथ लूपिंग के जरिए 720 मेगावाट क्रोड हाइड्रो पावर को भी मुंसलिक जो है वो कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अवैस कानी तफसीलात के लिए। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत से मुतालिक हुकूमत को रास्ता बता दिया। बॉल हुकूमत के कोर्ट में आ गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 2 तजावीज़ दे दी हैं। पेट्रोल महंगा करना है या नहीं, फैसला अब हुकूमत को करना होगा। IMF की शराइत पूरी करने के लिए कौमी असम्बली में टैक्स छूट खत्म और सेल्स टैक्स 17% करने की मंजूरी दे दी गई। काटी की सीनियर नायब सदर माहीन सलमान का कहना है कि अद्वियात, दरामदी मसालाजात, मोबाइल फ़ोन और बच्चों के दूध समेत दीगर 150 अशिया की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत को ज़रई आमदन पर टैक्स लगाना चाहिए। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट में। हुकूमत ने IMF की शर्त पूरी करने के लिए आवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ा दिया। कौमी असम्बली से मिनी बजट की मंजूरी के बाद अद्वियात, उनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल, 500 रुपए से जायद मालियत और 200 ग्राम से जायद वजन का हामिल, बच्चों का दूध, पैम्पर, पनीर, दही, मक्खन, क्रीम, देसी घी और मिठाइयाँ महंगी हो जाएंगी। मिनी बजट में तकरीबन 150 अशिया पर सेल टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। मोबाइल फोन पर टैक्स 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, जिससे 7 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूल होगा। छोटी दुकानों पर फरोख्त
फरोख्त होने वाली डबल रोटी, बन, सवैयां, नान, चपाती, शीरमाल पर तो टैक्स लागू नहीं होगा, मगर टियर 1 में शामिल बेकरियों, रेस्टोरेंट, फूड चेन्स और मिठाई की दुकानों पर इन अशिया की फरोख्त पर टैक्स लगेगा। 1800 सीसी की मुकामी और हाइब्रिड गाड़ियों पर 8.5% और 1801 से और 2500 सीसी की गाड़ियों पर 13.25% सेल टैक्स आयद होगा, जबकि दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी 12.5% टैक्स लगेगा। कुरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री की सीनियर नायब सदर माहिन सलमान ने शिकवा किया कि टैक्स दहंदगान पर ही इजाफी टैक्स का बोझ डाल दिया गया। जब आप दूध के ऊपर टैक्स लगाएंगे, चावल चीनी पे टैक्स लगाएंगे, तो ये आम आवाम को कैसे हिट नहीं करेगा? क्या आम आवाम चीनी और चावल नहीं खाते? क्या वो रोटी नहीं खाते? जब खाएंगे तो वो बेसिकली टैक्स उसके ऊपर दे रहे होंगे। माहिन सलमान ने हुकूमत को ये भी मशवरा दिया कि वडेरों जागीरदार बहुत कम टैक्स देते हैं, इनकी आमदनी पर भी टैक्स आयद होना चाहिए। आपने इस वक्त एक जागीरदार को टैक्स नहीं किया, आपने जो खेतों में काम करने वाला मजदूर है उसको टैक्स कर दिया। मिनी बजट में ज़रूरी शोबे में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ नौइयत के प्लांट्स और मशीनरी, स्टेशनरी, वेजिटेबल घी, पैक फूड आइटम्स, अंडे, पोल्ट्री, गोश्त और जानवरों की खुराक की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल पर भी टैक्स छूट खत्म करने की मंजूरी दी गई है। अवाम के लिए पैसे नहीं, वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। उस्मान बुज़दार के दफ्तर की तज़ीन व आराइश पर 4 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च होंगे। नए एयर कंडीशन लगेंगे, कारपेट तब्दील होंगे, पेंटिंग्स, दीवारों पर तारीखी तस्वीर लगाई जाएंगी, जबकि वज़ीर आला के साथ साथ स्टाफ के दफातर की तज़ीन व आराइश भी होगी। सिविल सेक्रेटेरिएट में कायम ये वो दफ्तर है जहाँ वज़ीर आला पंजाब 3 साल में बमुश्किल 4 दफ़ा गए हैं। दिसंबर में सालाना बुनियादों पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक से दरामदात में बड़ा इजाफा हुआ। दिसंबर 2021 में अमरीका से दरामदात में 101% और चीन से दरामदात में 68% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दिसंबर में सालाना बुनियादों पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ ममालिक से दरामदात में बड़ा इजाफा देखने में आया है। दिसंबर 2021 में अमरीका से दरामदात 101% बढ़ी, जबकि चीन से दरामदात में 68% का इजाफा देखा गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक दिसंबर 2021 में चीन से दरामदात में 68% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़िश्ता माह चीन से दरामदात 2 अरब 10 करोड़ 77 लाख 60 हज़ार डॉलर रहीं। दिसंबर 2020 में चीन से दरामदात का हजम 1 अरब 25 करोड़ 25 लाख 80 हज़ार डॉलर था, जबकि दिसंबर 2021 में अमरीका से सालाना बुनियादों पर दरामदात 101% बढ़ी। अमरीका से दरामदी हजम 43 करोड़ 97 लाख 30 हज़ार डॉलर्स रहा है। इसके अलावा दिसंबर 2021 में सऊदी अरब से दरामदात 69% बढ़ी। दस्तावेज़ात के मुताबिक जापान से दरामदात में 161 और थाईलैंड से 162% इजाफा हुआ। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। वकास, बताएगा दस्तावेज़ात में क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? जी, मुल्क की दरामदात जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, और अगर दिसंबर के महीने का जायजा लिया जाए तो इसमें ये देखा जा सकता है कि दिसंबर 2021 में चीन से दरामदात में 68% का इजाफा हुआ है, और गुज़िश्ता माह चीन से दरामदात 2 अरब 10 करोड़ 77 लाख 60 हज़ार डॉलर की थी। लेकिन फिर गुज़िश्ता बरस दिसंबर में इनका हुजूम जो है वो 1 अरब 25 करोड़ 25 लाख डॉलर के करीब था। इसी तरह दिसंबर में अमरीका से भी सालाना बुनियादों पर दरामदात में 101% के करीब इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दिसंबर 2021 में अमरीका से 45 करोड़ 97 लाख डॉलर की दरामदात की गई है, जबकि इनका हुजूम गुज़िश्ता बरस 21 करोड़ 83 लाख डॉलर के करीब था। इसी तरह सऊदी अरब से दरामदात में 69% इजाफा हुआ है, जबकि इंडोनेशिया से 45% इजाफा हुआ है, और कतर से दरामदात में पाकिस्तान का 167% के करीब इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जापान से 161%, कुवैत से 45% और थाईलैंड से 162% के करीब दरामदात जो है वो मुसलसल बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया वकास अजीम अपडेट करने के लिए। चीन से आज़ाद तिजारती मुआहदे की आड़ में पेट्रोल की दरामद पर टैक्स बचाने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत ने चीन से तेल दरामद का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पेट्रोलियम डिवीज़न ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी से तफसीलात भी मांग ली हैं। चीन से आज़ाद तिजारती मुआहदे की आड़ में पेट्रोल की दरामद पर टैक्स बचाए जाने का इंकशाफ हुआ है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, ये क्या मामला है? जी, एक बड़े फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि चीन से आज़ादाना तिजारती मुआहदे की आड़ में जो पेट्रोलियम की दरामदात है उसके ऊपर टैक्स बचाने का इंकशाफ हुआ है, और इस सिलसिले में वज़ारत पेट्रोलियम ने इसका नोटिस लिया है। सेक्रेटरी OCAC को एक खत लिखा गया है जिसमें
पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल मार्केटिंग की जानिब से जो चीन से दरामद किया गया है पेट्रोल, उसकी तफसीलात का रिकॉर्ड मांग लिया गया है। इस खत में यह बताया गया है कि FATF के तहत चीन से कई OMCs हैं जिन्होंने पेट्रोल बरामद किया है, और चीन से FATF के तहत जो पेट्रोल बरामद किया जा रहा है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, ताहम जो कस्टम ड्यूटीज है वो बताई जा रही है। पेट्रोलियम डिवीजन ने इस पर जो रिकॉर्ड है 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक इसका मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया वकास अजीम अपडेट करने के लिए। मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि मुल्क में कोरोना के केसेस फिर से तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। अवाम से अपील है कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। 12 साल से ज़ायद 50% आबादी वैक्सीन शुदा है। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपके सामने है कि जो 70 मिलियन का टारगेट था 31 दिसंबर के लिए, वो 30 दिसंबर को अचीव हो गया। आज 50% से ज्यादा जो 12 साल से उम्र के ज्यादा के बच्चों की पॉपुलेशन, 12 साल से ज्यादा उम्र की पॉपुलेशन है सारे, आज उनकी 50% से ज्यादा जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड है। कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं आपके सामने और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और दुनिया भर में आपने जो देखा पैटर्न वो भी हम यहाँ यही पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जहां पीक किस तरह जाना शुरू होती थी, यहाँ इस वक्त ये जो केसेस की जो तेजी है वो इस अंदाज से है कि बिल्कुल वो जो रेट है वो वर्टिकल चल रहा है। इसका मतलब है कि हर रोज एक बड़ा वाज़े इजाफा हो रहा है केसेस में। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।